Two human beings, although they came from different backgrounds, shared a wonderful life together in harmony and happiness. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء यहाँ ख्वाब समझ आँखों का टूट जाएगा हर एक तार यहाँ सांसों का घर बसा करते हैं दुनिया में उजड़ने के लिए लोग मिलते हैं यहाँ मिलके बिछड़ने के लिए सब चले जाते हैं रहता है यहाँ कौन सदा किए जा सबका भला आज सब कुछ है तेरा कल का है किसको पता ये मैं उस शख्स और उस हस्ती के लिए कह रहा हूँ जिसका नाम नरगिस था वो एक नेकी और भलाई का नमूना थी वो सही मानों में एक बहुत बड़ी इंसान भी थी फिल्म की कलाकार एक अलग चीज है उसमें उन्होंने एक अपना मकाम जो पैदा किया उससे हर शख्स वाकिफ है उन्होंने एक नया रास्ता एक नई मंजिल लोगों को दिखाई आपकी बात नहीं मानी मैं समझती थी कि मेरा दिल साफ है तो मुझे दुनिया वालों की क्या परवाह हंसो नहीं संसार का भार उठा लोगे देवी ममता का बोझ न उठाया जाएगा गुड मॉर्निंग देवी गुड मॉर्निंग देवी ये मुझसे 10 बरस छोटी मेरे गोदों में पली बड़ी मेरी आंखों के सामने हिंदुस्तान की इतनी महान कलाकार बनी इतनी महान हस्ती बनी और आज कुछ नहीं है कुछ नहीं है Although Anwar is no more, Nargis's other brother, Akhtar, recalls the early days of the family. Most of you know my sister as Nargis. But when she was born, we named her Fatima. It was in the ancient city of Allahabad that Fatima was born on the 1st of June, 1929. This is the house in which our family lived. Our home was redolent with music and poetry. And little Fatima lived in an atmosphere in which art was a way of life. My mother, Jagdanbai, was a renowned singer, and my father was Abdul Rashid. We shifted to Calcutta and after some time to Bombay when Fatima was very young because my mother's fame as a singer had spread and she was much in demand. Raja Balam Par Dejwa
my parents decided to settle in Bombay. They loved the sea and found a spacious flat on the fashionable Marine Drive. Living in the same building was a young lad who was to become a famous judge of the High Court, Mr. Justice Linton. When I first came to know her way back in 1939, I think I was about 12 or 13, and she was about 10 or 11. Basically, she was a tomboy, and I still remember her with pigtails and both of us running around the building to play badminton. Fatima went to Queen Mary's School. She learned English quite readily, spoke it fluently, and developed a love of literature, which was to continue throughout her life. But the young children, oh my brothers, they are weeping bitterly. They are weeping in the playtime of others, in the country of the free. It was, I believe, but I suppose that was Jaddan Bai's ambition, and Nargis, to Nargis's credit, fulfilled her mother's ambition. Jaddan Bai was proud of Fatima's performance in a school play and began to think in terms of a future for her daughter, perhaps in the talkies, the new medium of the 20th century. Jaddan Bai produced a film in which Fatima was featured as Baby Rani. Then followed a series of roles as a child artist. And Jaddan Bai's ambition received support from Fatima's father, popularly known as Mohan Babu. उनको भी जानता था मोहन बाबू, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि जो ग्रेट क्वालिटी एज ए ह्यूमन बीइंग नरगिस में थी, वो दरअसल उसने अपने बाप से ली थी। जद्दन बाई शायरा थी, डायरेक्टर थी, कमांडर थी, सभी कुछ थी, कोई ऐसी चीज नहीं, वो सभी कुछ कर सकती थी। लेकिन मोहन बाबू एक चीज में सबसे बहुत बड़े थे कि ही न्यू हाउ टू सैक्रिफाइस एंड हाउ टू बी क्वाइट एंड बेयर एवरीथिंग। शायद आपको पता हो कि एक दिन रावलपिंडी से एक लड़के को मेडिकल पास करने के लिए भेजा जा रहा था वलायत, और वो लखनऊ में आके ठहरा था, और उसने इनको जद्दन भाई को तो इनका गाना सुना था। और क्या हो गया फिर कि थी क्या खबर के घर पे कटेगी तमाम उम्र। हम तो रुके थे साया दीवार देखकर, बस वो शख्स कहीं नहीं गया, न उसने मेडिकल पास किया, न कुछ किया, उनसे शादी कर ली और सारी जिंदगी उन्हीं की खिदमत में उसको गुजार दी, और वो चीज नरगिस होती है। With the encouragement of her parents and her family, Fatima was ready to burst upon the Indian screen as an almost instantaneous star. Baby Rani was about to become Nargis. Mehboob's Taqdeer introduced Nargis in a starring role opposite Motilal, a leading man of the day. भगवान, काश मेरा ये ख्वाब सच्चा हो। तुम्हारे ख्वाब की ताबीर तुमको मिल गई। आप यहाँ? तुमने भगवान से प्रार्थना की थी ना, उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। देखिए संभल कर, कहीं गिरना पड़ेगा। इश्क के मैदान में लड़ने वाले शहसवार गिरने से नहीं डरते। लेकिन मुझे डर मालूम होता है। ये डर जो है ना, ये तुम्हारी मोहब्बत की निशानी है। मेरी रानी को लाए बहार, मेरे जीवन का पहला सिंगार, मेरे जीवन का पहला सिंगार, मेरी सखिया कहेगा मलाल, हाँ 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 मेरी सखिया कहेगा मलाल, हाँ 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 मेरा महबूब हो यार
once again gave a brilliant performance in Mehboob's historical epic, Humayun. The screen name Nargis was given to her by the great director Mehboob and his cameraman Farid Virani. सरदार मीर बाबा दोस्त और उनकी दुख्तर बुलंद अख्तर शहजादी हमीदा बानो का काफिला आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हुजूर तशरीफ ला रही थी तो खराम नाज से दिल पामाल हो रहा था और आंखें फर्श राह बनी जा रही थी। कौन हो गुस्ताख तुम? कौन हो गुस्ताख तुम? खुदा का सीधा साधा बंदा। मुझसे गुस्ताखी करने का सबब? इसका जवाब दिल की धड़कनें ही दे सकती हैं। जानते हो किससे गुस्ताखी कर रहे हो? एक पैकरे हुस्न से, एक सरापा नूर से। काश मेरे पास तलवार होती। सरकार को तलवार की कोई जरूरत नहीं, अब्रुए खमदार का इशारा काफी। तो हुमायूं में वो मेन लीड में नहीं थी, सेकंड लीड में थी, मेन लीड में वीणा थी। फिर भी वो जो रोल किया बहुत समझ बूझ के किया था। इससे मालूम होता है कि आगे जाके बहुत नाम होगा इस लड़की का। Those who have written on the history of Indian cinema refer to Mehboob's Andaz as the first modern Indian social. For the first time, Nargis appeared in a role far removed from the image of the traditional Indian woman. आप बड़े बदतमीज हैं। किसी लड़की का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? आप लड़की? मैं तो आपको लड़का समझ रहा था। तुम शरीफ नहीं मालूम होते। हाँ जी, मैं काबिल हूँ। आप तो खामखा मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। कहिए कुछ सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। चले जाइए यहाँ से। आज शीला की सालगिरह में कोई न कोई हंगामा जरूर होने वाला है। हंगामा? हाँ। हर एक की नजर घबरा घबरा कर आप पर ही पड़ रही है। ये नहीं जानते कि अगर बिजली चमक उठती तो सबके सब अंधे हो जाएंगे। वो अच्छी तरह जानते हैं। One aspect of Nargis's talent was to be able to switch from light comedy to tragedy. दुनिया की निगाह में मैं मुजरिम हूँ, इसलिए कि मैंने भी दुनिया की कभी परवाह नहीं की और कभी अपने डैडी की बात नहीं मानी। अगर उस रोज उनकी बात मान ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। One of Nargis's greatest performances was in Kedar Sharma's classic film, Jogan. डगमग डगमग डोले नैया पर लगाओ तो जानू खिवैया। डगमग डगमग डोले नैया पर लगाओ तो जानू खिवैया। जिस तरह का भी वो सब्जेक्ट था उसको 29 दिन में पूरा करना कोई मानी रखता है और वो इसीलिए इतने छोटे अरसे में कंप्लीट हुई कि आई वॉज वेरी लकी कि मेरी जोगन नरगिस थी। गांव छोड़ने का एक इरादा कर लिया। क्यों? कदम कदम पे मेरी शांति का भंग होता है। क्यों? जब किसी वस्तु से मोह होने लगे तो उसे छोड़ना ही हमारा धर्म है। जगह बदलने से मनोदशा बदली कि क्या? जब चित चंचल होता है, मन गिरने लगता है, तो उसे बस में लाने के लिए प्रायश्चित करना जरूरी है। जोगन में वो जितनी डेप्थ कैरेक्टर की उसने दी है वो मेरे ख्याल से कोई देर नो अदर आर्टिस्ट इतनी नहीं दे सकती थी। और जब उसने जोगन नहीं बनी थी और वो सहेलियों के साथ गाने वाने गाए हैं होली के और ये वो, तो उसमें वो शरारत वारत वो भी सब कुछ मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ती गई है फिल्म, उस लड़की ने अपने आप को इतना अच्छा मोल्ड किया कि लोग कहते हैं कि शी वॉज वेरी ग्रेट इन दैट फिल्म।